नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मेरा वीडियो यूट्रोफिकेशन पार्ट 2। Impacts of eutrophication. Increase in biomass of phytoplankton and macrophytes. Changes in species composition of macrophytes and aquatic animals, that is fish and arthropods. Depletion of DO, clearly. Death of sensitive fish. When there is low DO, there is a death of sensitive fish population. Dead zones. These are immobile species and fish die in deeper parts of the water body. So we know that upper parts of the water body are richer in dissolved oxygen. Lower parts of the water body have low DO. And due to eutrophication, the lower parts of water body, there is not just low DO. It happens that there are anoxic conditions. Like there is no DO in the lower parts of the water body. And some animal population which don't move really too much, which are mostly immobile and stick to the base of the pond or water body, and other sensitive fish in the deeper parts of the water body, they die. And they die in patches in different zones in the water body. And this creates dead zones within the water body. Species invasion by tolerant species outcompeting sensitive ones. Clearly, as I told you before, when there is low DO, then the invasive species, the tolerant species, will outcompete the sensitive ones because the sensitive ones are anyways having difficulty surviving that low DO condition. Toxicity because of poisonous algae, that is, an example is a shellfish poisoning. So yeah, some algae that grows in the water body might also be toxic. And shellfish poisoning was a case that happened earlier. And so what happened that there was poisonous algae. The shellfish ate that poisonous algae and the humans ate that shellfish. So shellfish was poisoned and that poison entered the human system and people started getting sick and even died. So toxicity can happen that way as well. So this is also a drastic impact of eutrophication, a terrible, a lethal impact of eutrophication, you could say. Then there are economic losses. Clearly the water body is dying. So all that fish that would have been harvested from the water body, clearly there cannot be a fish population in an eutrophic water body. So there is an economic loss, clearly. Health impacts. Blue baby syndrome due to nitrate-rich water, also called methemoglobinemia. So this is also a very bad health impact of eutrophication. So suppose there's a water body. It could be a lake, a river, anything. And that water body is being used as a source of drinking water. And if that water body is rich in nitrates, then that nitrate-rich water is being ingested by, is being drunk by everybody who uses that water body as a source of drinking water. And kids are especially sensitive to nitrate-rich water. And what happens when kids below 6 years of age drink that nitrate-rich water? There is a chemical change that happens in their hemoglobin, that is the compound in the blood. And hemoglobin is responsible for transferring oxygen throughout your body and to your heart, to your lung, everywhere. And when this nitrate-rich water, this affects the hemoglobin, and then the oxygen carrying capacity of the blood is reduced. And due to lack of oxygen in the blood, the skin of the babies turn blue and they have other drastic symptoms and it's a deadly disease. So blue baby syndrome happens due to nitrate-rich water. So anyways, eutrophication can have direct and indirect impacts on humans, animal life, and economic activity. How to remedy eutrophication? So it's a really good topic. We know how eutrophication happens. We know the ill effects of it. Let me describe it in Hindi first. So in eutrophication का impact क्या होता है? सबसे पहले बायोमास जो है फाइटोप्लैंक्टन और मैक्रोफाइट्स मतलब बड़े प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, इन सबका बायोमास बढ़ जाता है. और जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन है मैक्रोफाइट्स का और एक्वाटिक एनिमल्स का, वो बदल जाता है क्योंकि लेक में न्यूट्रिएंट एकदम से ज्यादा हो गया है. तो कुछ प्लांट्स की ग्रोथ एकदम से थ्राइव हो जाती है और कुछ सेंसिटिव प्लांट्स को दिक्कत होती है क्योंकि कुछ प्लांट्स इतना फैल गए हैं कि सेंसिटिव प्लांट्स को जगह नहीं मिल रही. तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन में भी चेंज होता है और फिश का पॉपुलेशन भी उस स्पीशीज कॉम्पोजिशन में भी चेंज होता है. डिप्लीशन ऑफ डीओ, क्योंकि डीओ घटता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से, तो इसलिए भी सेंसिटिव फिश को दिक्कत होती है. डेथ ऑफ सेंसिटिव फिश. डेड जोन्स, तो क्या होता है कि किसी भी वाटर बॉडी में कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जैसे बॉटम में डीओ हमेशा से बॉटम में कम होता है. कुछ इमोबाइल फिश, कुछ इमोबाइल स्पीशीज या बड़ी मछलियां कभी वाटर बॉडी की निचली सतह में रहती हैं.
और वहां पर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट या यूट्रोफिकेशन की वजह से वहां पर डीओ कम नहीं, खत्म ही हो जाता है। तो वहां कोई एनिमल लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता और वहां के सारे जानवर मर जाते हैं। तो ये डेड जोन्स होते हैं जब, जो कि किसी भी यूट्रोफिक वाटर बॉडी में जगह 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 हो जाते हैं। तो डेड जोन्स। स्पीशीज इन्वेजन बाय टॉलरेंट स्पीशीज आउट कम्पीटिंग सेंसिटिव वंस। तो टॉलरेंट स्पीशीज जो होती हैं वो अब थ्राइव कर सकती हैं, क्योंकि सेंसिटिव वालों को पहले ही दिक्कत हो रही है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो सेंसिटिव फिश जो है वो, उनको कंपटीशन मिल रहा होता है टॉलरेंट फिश से या आर्थ्रोपोड से। टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ पॉइजनस एल्गी, शेलफिश पॉइजनिंग। कभी कभी एल्गी पॉइजनस भी होती है, और अगर समंदर में पॉइजनस एल्गी है और शेलफिश जो होती है वो उस पॉइजनस एल्गी को खा रही है, तो शेलफिश पॉइजन हो गई। और उस पॉइजनस, उस जहरीली शेलफिश को फिर हम हार्वेस्ट करते हैं और हम खा रहे होते हैं, तो वो जहर हमारे अंदर जाता है। और शेलफिश पॉइजनिंग के सीवियर केसेस पास्ट में हो चुके हैं। तो ये टॉक्सिक एल्गी की वजह से ही हुआ था। इकोनॉमिक लॉसेस, क्लियरली शेलफिश पॉइजनिंग हो रही है, तो उस शेलफिश को हम खा नहीं सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक लॉस है। सेंसिटिव फिश पॉपुलेशन मर रही है, उस फिश को, वो मर रही है फिश, तो वो भी इकोनॉमिक लॉस है। तो किसी भी यूट्रोफिक जो पॉन्ड है या लेक है या इवन यूट्रोफिक जो समंदर है, वहां पे हम हर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, फिश पॉपुलेशन का डेथ होता है, तो क्लियरली इकोनॉमिक लॉस है। हेल्थ इम्पैक्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम ड्यू टू नाइट्रेट रिच वाटर। ब्लू वेल सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चों की जो पूरी स्किन है, त्वचा है, वो नीली पड़ने लगती है। हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड है, ब्लड में होता है, जिससे कि ब्लड जो है ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल को डिलीवर करता है। और जब नाइट्रेट होता है पानी में, तो वो नाइट्रेट रिच वाटर पानी हम पीते हैं, और वो नाइट्रेट हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और फिर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और इसकी वजह से जो बच्चे छोटे 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चे खासा सेंसिटिव होते हैं, और वो जब इस नाइट्रेट रिच पानी को पीते हैं तो उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिया की शिकायत होती है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। So how to remedy eutrophication? Treating municipal and industrial sewage before disposal. Clearly, क्योंकि म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल सूएज से सबसे ज्यादा यूट्रिफिकेशन, सबसे तेजी से यूट्रिफिकेशन हो सकता है, तो उनको ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्पोज करना चाहिए। और उनको किस लेवल तक ट्रीट करना चाहिए, इसके बारे में स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और सीपीसीबी ने दे रखे हैं, तो उनके हिसाब से उस म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल सूएज को ट्रीट करके ही वाटर बॉडी में डालना चाहिए। सो म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सूएज मस्ट बी ट्रीटेड पर सीपीसीबी एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, and then only they should be disposed in a water body, and this will certainly minimize eutrophication. Minimizing agricultural runoff, so we should try our best to minimize agricultural runoff. तो खेतों से जो पानी जाता है दूसरे वाटर बॉडीज में, उसको भी कम करने की कोशिश करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि सिंथेटिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से ही नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स पानी से, बारिश के पानी से बह के वाटर बॉडी में जाते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं या काउ डंग मैन्योर डाल रहे हैं, तो या स्लो रिलीज फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो इन फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट का कंटेंट होता है वो रिलेटिवली कम होता है, और वो सॉइल के साथ इजीली बाइंड करता है, तो रन ऑफ में वो निकल के बाहर कम जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत अच्छा तरीका है एग्रीकल्चरल रन ऑफ को कट ऑफ करने का। और बायोफिल्ट्रेशन, कभी कभी क्या होता है, जैसे खेत है, ऐसे खेत है, ये खेत है, खेत के बगल में वाटर बॉडी है, तो खेत और वाटर बॉडी के बीच में हम एक लेयर क्रिएट करते हैं दूसरे प्लांट्स की। तो खेत से जब पानी पहले इस प्लांट के लेयर में जाता है और यहाँ से बायोफिल्टर होते ही वाटर बॉडी में जाता है। तो प्लांट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्सेस नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जितना भी एग्रीकल्चर रन ऑफ हुआ वो इस बायोफिल्ट्रेशन जो टेक्निक है जिसके थ्रू, तो इस बायोफिल्टर जो कि प्लांट्स हैं इनके थ्रू पास कराने से वो एग्रीकल्चर रन ऑफ में से नाइट्रेट और फॉस्फेट प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है और क्लियर वाटर वाटर बॉडी में जाता है। तो ये बायोफिल्ट्रेशन टेक्निक है। बायोरेमिडिएशन, वो बायोफिल्ट्रेशन की तरह ही है कि बायोरेमिडिएशन मतलब प्लांट्स जो है वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं और फिर वो पानी कहीं जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो बायोरेमिडिएशन है। शेलफिश एक्वाकल्चर इन एस्चुरीज टू रिमूव एक्सेस नाइट्रोजन। तो शेलफिश जो है वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करती है अपने स्किन, अपने टिश्यूज में, और एक रिसर्च पेपर के मुताबिक एवरेज 16.8 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव होता है हर 1 किलो शेलफिश के मीट में। तो शेलफिश क्या होता है, तो किसी एस्चुरी में आपको लगता है कि एस्चुरी का मतलब होता है वहां वो स्थान जहां नदियों का पानी समंदर से मिलता है।
नदियों का पानी क्लियरली बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है, और जब वो समंदर से मिलता है तो ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट समंदर में भी कर देता है, और फिर समंदर में यूट्रोफिकेशन होता है। तो और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो है वहां पे सेल्फिश एक्वाकल्चर करेंगे। सेल्फिश को हम मतलब उगाएंगे, तो वो सेल्फिश जो है एक्सेस नाइट्रोजन जो है वहां उस पानी में उसको खा लेगी, उसको अपने सेल्स में असिमिलेट कर लेगी, तो पानी में नाइट्रोजन कम हो जाएगा और समंदर में यूट्रिफिकेशन नहीं होगा। सीवीड फार्मिंग, सीवीड भी यही करती है। सीवीड जब होता है तो जब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है समंदर में, तो सीवीड उस एक्सेस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेती है और फॉस्फेट को अब्सॉर्ब कर लेती है, और इसकी वजह से समंदर में जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है वो नहीं हो पाता है, और सीवीड फार्मिंग कह रहे हैं। तो सीवीड फार्मिंग क्या होता है? सीवीड हमने समुद्र में लगाई, उसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट अगर हो रहा है तो सीवीड खूब तेजी से थ्राइव करेगी, और फिर उस सीवीड को हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे, तो उसको हम वहां मरने नहीं देंगे। जब मरेंगी सीवीड तो ऑर्गेनिक एक्टिविटी होगा, और तब ऑर्गेनिक डिग्रेडेशन होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी होगा, और तब डीओ कम होगा। पर अगर हम उसको निकाल लेंगे तो कोई डेथ और डिकम्पोजिशन की बात नहीं होगी, तब कोई डीओ कम नहीं होगा, और न्यूट्रिएंट जो एक्सेस नाइट्रेट थे वो भी सीवीड के साथ निकल गए। तो सीवीड फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि नाइट्रोजन का एक्सेसिव जो अमाउंट है वो भी बायो रेमेडी हो जाता है, और हमें एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट मिलता है सीवीड, जो कि कॉस्मेटिक्स में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और बहुत पॉपुलर भी है। उसके अलावा मैकेनिकल मेथड्स हैं, तो जहां भी फोर्स या एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसको मैकेनिकल मेथड कहते हैं। क्रिएटिंग डाइक्स, जैसे कोई वाटर बॉडी है उसके इर्द गिर्द हमने एक दीवार जैसी खड़ी कर दी, तो जो भी पानी है पहले ये दीवार जो है उस पानी को रोक लेगा और फिर वाटर बॉडी में मिलने नहीं देगा। तो ये भी एक तरीका है डाइक्स। So let me repeat everything. How to remedy eutrophication: treating municipal and industrial sewage before disposal clearly, then minimizing agricultural runoff. Organic farming, because organic manure or vermicompost or slow release fertilizers, these have a lower nutrient content, and also they mix up well with the soil and bind well with the soil. So nutrients from organic manure do not get eroded easily in through the rainwater, but rather mix up with the soil. So organic farm is a good solution to prevent agricultural runoff. Biofiltration, clearly. Biofiltration is a technique where, suppose there's a field and it has the soil is nutrient rich, and clearly the nutrients from that field will go to the water body. So what they do, this is the field and this is the water body, and they create this buffer zone between the field and the water body, and there's a layer of plants in this buffer zone, and they absorb excess nitrates and phosphates from this runoff water, and then they release water in the water body. So they filter off excessive nutrients. This is biofiltration. Bioremediation, same thing, the use of plants to absorb excess of nitrates and phosphates from the soil or water. Shellfish aquaculture in estuaries. So estuaries are spots where river water meets seawater, and river water is clearly rich in nutrients. So the river water adds nutrients to seawater, and then the seawater becomes eutrophic. So there is always this problem at estuaries. So shellfish aquaculture, if we grow shellfish at the estuaries, all the excess of nitrogen will be removed by the shellfish, because according to a research paper, an average of 16.8 gram of nitrogen is removed per kg of shellfish meat. So clearly shellfish is a good alternative for reducing excessive nitrogen at estuaries. So shellfish aquaculture is one way to remedy eutrophication. Seaweed farming. Clearly seaweed also uses excessive nitrates and phosphates and grows and thrives in the water body. And when we harvest that seaweed, all the excess nitrates and phosphates are also harvested. And the good thing is seaweed is an economically viable product, and we use it all the time in cosmetic manufacturing, and it's very popular and becoming more and more popular with every passing day. So seaweed farming is a good way to remedy eutrophication. Then there are mechanical methods like creating dikes or walls around lakes to prevent the influx of runoff. That's one way. Here, this is seaweed I was just talking about. So seaweed it absorbs all the excess nutrients in the sea, and then this seaweed is harvested and utilized for the production of cosmetics. And here, this is shellfish. So this also absorbs excess of nitrates in its
petition. So United Nations recognition of the problem. Clearly, the problem of eutrophication in freshwater as well as marine water was big, and it was causing severe economic losses. So United Nations recognized this problem. When did United Nations recognize this problem? In a survey conducted jointly by Lake Biwa Environmental Research Institute, Japan, International Lake Environmental Committee, Shiga, Japan, and United Nations Environment Program, Nairobi, Kenya. In between 1988 to 1993, there was a survey which was conducted by these three institutes, and it was observed that 54% of the lakes in Asia at that time were eutrophic, 53% of the lakes in Europe were eutrophic, 48% of the lakes in North America were eutrophic, 41% of the lakes in South America were eutrophic, and 28% of the lakes in Africa were eutrophic. So we could see the extent of the problem. Almost half of the lakes in each continent, most of the continents, were eutrophic. This survey highlighted the extent of the damaging effects of eutrophication. Hence, the United Nations Framework for Sustainable Development Goals. We all know United Nations has a Framework for Sustainable Development Goals, which is SDG, and it established a timeline and a target according to which by 2025, nations of the world have to prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution. So nutrient pollution or eutrophication is clearly mentioned, and this is specifically mentioned in the Sustainable Development Goal number 14, which talks about life below water. तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इस समस्या को स्वीकारा कि हाँ ये समस्या है, और स्वीकारा कब? जब लेक बीवा एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जापान में है, इंटरनेशनल लेक एनवायरमेंट कमिटी वो भी जापान में है, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो जिसका ऑफिस नायरोबी केन्या में है, इन बिटवीन, और ये 1988 से 1993 तक एक सर्वे कराया इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, जिसमें पाया गया कि 54% लेक जो एशिया की हैं यूट्रॉफिक थी, न्यूट्रिएंट रिच थी, 53% लेक जो यूरोप के हैं न्यूट्रिएंट रिच हैं, 48% लेक 48% झीलें जो नॉर्थ अमेरिका की हैं न्यूट्रिएंट रिच हैं, 41% झीलें साउथ अमेरिका की न्यूट्रिएंट रिच हैं, और 28% झीलें अफ्रीका की न्यूट्रिएंट रिच हैं। सब जगह यूट्रोफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम कितना बड़ा था। और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र है, उनका एक फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो लेक्चर 1 देख सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के SDG, और उसमें एक टाइमलाइन एस्टैब्लिश किया गया और एक टारगेट कि 2025 तक सभी देशों को मराइन पोल्यूशन को जहां तक हो सके कम करना है, और खासकर जो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, जमीनी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उससे जो मराइन पोल्यूशन, उससे जो समंदर में पोल्यूशन होता है, मतलब समंदर में जो कूड़ा प्लास्टिक वगैरह जाता है, या न्यूट्रिएंट पोल्यूशन जो कि यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड है, यूट्रोफिकेशन को न्यूट्रिएंट पोल्यूशन भी कहते हैं, तो वो उन सबको 2025 तक सिग्निफिकेंटली यानी कि बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है, लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर के जीवन की बात करता है वो गोल, और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें ऐसा करना है। तो क्लियरली संयुक्त राष्ट्र ने भी इस समस्या को स्वीकारा 1993 के बाद। तो हम देख सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके कारण, उसका साइकिल, उसका इम्पैक्ट क्या, उसका असर होता है, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने आज बातचीत की। यूनाइटेड नेशंस का इस पे क्या टेक है, इसके बारे में क्या सोच है, इसके बारे में भी हमने बातचीत की। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। So I hope what I talked about eutrophication today, its causes, impacts, remedies, and UN's take on it. I think all of you got what I wanted to convey. So thank you for listening to the entire video with a lot of patience, and hope you got what I wanted to say. Please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.